کچھ دیر فکر ہو جائے. ٹھیک ہے حضور، میں تو چشتی بندہ ہوں، قادری اور چشتی تو علم اور ذوق دونوں کو لے کے چلنا تو میری ایک مجبوری سی ہے. آپ نہیں بولیں گے تو علامہ عمر حیات سیالوی صاحب کی مسکراہٹ میرے لیے کافی رہے. اور اگر آپ کی سبحان اللہ بھی ساتھ مل جائے تو پھر انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے گا. موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ کوئی زیادہ آپ کو باریکیوں میں نہیں الجھاؤں گا، سیدھی صاف سی بات ہوگی. لیکن یہ ذرا میرے قریب بیٹھے شخص پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ حافظ جمال لجپال صاحب جو ساؤنڈ چلا رہے ہیں، حضور بس آپ ہیں تو پہلے ہی لجپال، بس تھوڑی سی لجپالی رکھیے گا میرے گلے کے اوپر اور آواز کے اوپر. بات ہم قرآن سے شروع کریں گے کیونکہ ہم منہاج القرآن والے ہیں. ہم بات قرآن سے شروع کریں گے کیونکہ ہم منہاج القرآن والے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں پوری ایمانداری سے کوشش کروں گا کہ بڑے آسان لفظوں میں ترجمہ تشریح رہے اور نکتہ اور استدلال بہت آسان ہو تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. اتنی سی بات دل میں بٹھا لیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو کسی بات کا، اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہیں ہے تو خود نہ بولو، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بات کیسے ہے. بیٹھے ہیں جی، ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے. ابھی قبلہ مجھ سے پہلے علامہ خضر حیات سیالوی صاحب نے خطاب فرمایا، اور آپ اہل ذکر، آپ اہل علم، علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور بڑے لوگ آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں. بس ایک سوال میں نے پیدا کرنا ہے، اس سوال پر آپ کی سبحان اللہ ہمیں بتائے گی کہ آپ کتنا جا کر بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. آپ کی سبحان اللہ چاہیے مجھے ساتھ ساتھ. اور بلند ویار نوجوان، ہمیں تو لوگ ایویں تانا دیتے ہیں شہر میں خالص دودھ نہیں ملتا، تو آپ خالص دودھ بھی پی کے سبحان اللہ نہیں بول رہے. تو دیسی خوراکیں مکھن گھی کھانے کا کیا فائدہ کہ اگر پاکوں کے ذکر میں بندہ سبحان اللہ نہ بول سکے. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا جاگ رہا ہے جو. ذرا آواز بلند کرو، ذرا نوجوان اپنے گلوں کو حرکت دیں، برکت سمجھو اور نعمت سمجھو اس محفل میں بولنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو. اب ذرا میری طرف دیکھیں سائیں، مجھے ایک بات تو بتاؤ، سوال اہل علم سے ہوتا ہے یا اہل ذکر سے ہوتا ہے؟ بہت اچھے. سوال اہل علم سے، علم والے سے ہوتا ہے یا ذکر والے سے ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کہتا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو، مگر قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اب پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ ذکر والے کوئی عام ذکر والے نہیں ہیں. یہ ذکر والے جو اہل ذکر ہیں یہ کون ہیں؟ اب دیکھیں سادہ سی بات ہے، ذکر والے کون ہیں یہ تب پتہ چل سکتا ہے اگر پہلے یہ پتہ چل جائے کہ ذکر کیا ہے. بول کر اپنی محبت کا ثبوت ہے. مجھے پتہ لگے جاگتے لوگ بیٹھے ہیں، دیہڑیاں کر کئیاں چلانے والے لوگوں، تمہارے اندر اللہ نے بڑی ہمت اور حوصلہ دیا ہے. ذکر علی، ذکر پنجتن پر بولنا سیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ذکر سے پوچھو. باری تعالیٰ اہل ذکر کون ہے؟ فرمایا پہلے یہ پتہ کر کے ذکر کیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن اس آیت کی تفسیر القرآن بالقرآن کی ضرورت ہے کہ قرآن نے کہا اہل ذکر سے پوچھ. اے قرآن تو بتا ذکر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ہمارا ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب قرآن ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، رب کہتا ہے ذکر والوں سے پوچھ. پتا چلا ذکر والے وہی ہو سکتے ہیں یا قرآن بچانے والے ہو سکتے ہیں یا سنانے والے ہو سکتے ہیں. یا تو قرآن بچانے والے اہل ذکر ہو سکتے ہیں یا قرآن سنانے والے اہل ذکر ہو سکتے ہیں. اے قرآن اب تو بتا تجھے بچانے والے کون ہیں،
सुभान अल्लाह हो जरा, बुलंद आवाज से शोर पड़े सुभान अल्लाह का यार। देखो जरा, अब इमाम, मैं आपसे सवाल ये है, इमाम अली मुकाम ने करबला में कुरान ही क्यों सुनाया? न इमाम कोई और वसीयत की बात करता है, न इमाम कोई और कलाम करता है, मगर देखिए इमाम अली मुकाम का सरे अनवर कुरान सुना रहा है। मैंने कहा हुसैन इब्ने अली, ए नवासा रसूल, ए जिगर गोशा बतूल, आप नेज़े की नोक पर कुरान सुना रहे हैं, किस लिए? कहा इसलिए कि मैंने, कुरान ने कहा था कि तुमने जिक्र वालों से पूछना है। कुरान ने कहा ए हुसैन, मैंने तो जमाने को बता दिया कि जमाने वालों सवाल अहले जिक्र से करना। अब जमाना पूछेगा अरे जिक्र तो कुरान है, मगर कुरान सुनाने वाला कौन है? सुनाता तो मौलवी भी है, सुनाता तो मौलवी भी है, सुनाता तो मुफ्ती भी है, मगर कोई ऐसा सुनाने वाला हो जो सुनाने का हक अदा करे। हुसैन इब्ने अली बोले कुरान तो घबरा नहीं, मैं तेरी तिलावत का हक यूं अदा करूंगा कि अब्बास के बाजू जब कस चुके होंगे, अली अकबर कुर्बान हो चुका होगा, नन्ही सकीना प्यासी होगी, अरे ज़ैनुल आबिदीन बीमारी में होगा, मैं अपनों को छोड़कर कुरान तेरा नगमा ज़माने को सुनाकर बताऊंगा। सुनाना इसको कहते हैं। भाई क्या कहने, क्या कहने, सुनाना इसको कहते हैं। तवज्जो, मैं एक बात करने लगा हूँ, पूरी तवज्जो। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जानती हैं हुसैन को करबला में कुरान सुनाने का फैज कहाँ से मिला? देखो, या तो वफा करनी है तो फिर हाथ उठा के करो, या मेरा दिल जख्मी ना करो। तवज्जो, ये कुरान सुनाने का फैज कहाँ से मिला? मैंने कहा हुसैन नो के नेजा पे कुरान सुना रहा है। आज तो उम्मत मस्जिदों में बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं, उम्मत घरों में बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं, उम्मत सफों पे बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं। ए हुसैन तू नो के नेजा पर सुना रहा है, ये फैज कहाँ से मिला? हुसैन इब्ने अली का जवाब आता है, फरहान मुझसे न पूछ, मेरा बचपन देख, मैं जब पैदा हुआ था आका ताजदार नाना इमामुल अंबिया ने मेरे कानों में अजान दी थी, मेरे वजूद में खून मौला अली का था, और मेरी माँ फातिमा ज़हरा जब लोरियां देती थी तो ड्रामे नहीं चलते थे, कुरान का नगमा होता था। मेरी माँ जब लोरियां देती थी तो कुरान का नगमा सुनाती थी। मैंने बचपन में आंख खोली तो माँ को देखा, मेरी माँ चक्की चलाने से पहले कुरान सुनाती है। तो हाथ उठा के ऊंची आवाज में बोलो, मेरी माँ चक्की चलाने से पहले कुरान सुनाती है, मेरी माँ रोटियां पकाने से पहले कुरान सुनाती है, मेरी माँ घर की सफाई करती है तो कुरान सुनाती है, मेरी माँ सारा दिन काम करने के बाद रात को मुसल्ले पे कुरान सुनाती है, मेरी माँ मुझे दूध पिलाने से पहले कुरान सुनाती है। हुसैन इब्ने अली बोले मैंने बचपन में माँ से वादा कर लिया, ए मेरी माँ चक्की चलाने से पहले कुरान सुनाना तेरा काम, माँ रोटियां पकाने से पहले कुरान सुनाना तेरा काम, माँ मुझे लुकमे खिलाने से पहले कुरान सुनाना तेरा काम, माँ मुझे दूध पिलाने से पहले कुरान सुनाना तेरा काम है। और करबला के अंदर 72 पर वार के नेज़े पर चढ़ के कुरान सुनाना हुसैन को। समझ आ रही थी? बोलो फिर। हुसैन फरमाते हैं मैं कुरान इसलिए सुना रहा हूँ कि माँ ने सुनाया है। मैं अपनी माँओं बहनों को बहुत बड़ा पैगाम दे गया। तवज्जो कीजिए कि एक जुमला और कहना चाहता हूँ। हुसैन फरमाते हैं कुरान इसलिए सुना रहा हूँ, माँ सुनाती रही। आवाज आए जरा, सभी हाथ उठा के बोल लो जो जाग रहे हैं। और हुसैन तो सुन्नी शियों का नहीं, ये तो मुसलमानों का है। हुसैन बल्कि इंसानों का है। तवज्जो, हुसैन फरमाते हैं मैं कुरान इसलिए सुना रहा हूँ, माँ सुनाती रही है। हुसैन बता गए जिसकी माँ बचपन में जो सुनाएगी बच्चा बड़ा हो के वही सुनाएगा।
बच्चा बड़ा हो के वही करेगा। एक तो वजह ये है कि माँ कुरान सुनाती रही। अगर हाथ उठा के बोल लें तो एक दूसरी वजह बताओ, और मुझे नहीं पता कौन तड़पेगा किबला। अल्लामा मेरे बड़े भाई का ये इलाका है, मेरे बड़े भाई का यहाँ सिक्का चलता है, लोग जानते हैं, और खिताबत के आप अजीम शाह सवार भी हैं। मैं आपको सुनता रहता हूँ, मगर एक अपने छोटे भाई का एक दर्द दिल है। एक तो वजह ये थी कि माँ कुरान सुनाती रही, दूसरी वजह क्या थी कि हुसैन ने नोके नेजा पे कुरान सुनाया। अगर ये बात आपके दिल में उतर जाए तो फिर सुभान अल्लाह का जरा गूंज पड़नी चाहिए। एक वजह ये थी कि माँ कुरान सुनाती रही, दूसरी वजह ये थी कुरान जिस सीने पर नाजिल होता रहा हुसैन उस सीने पर खेलता रहा। कुरान जिस सीने पर नाजिल होता रहा हुसैन उस सीने पर खेलता रहा। कुरान ने कहा, ए हुसैन मैं तकमील की तरफ जा रहा था, तू जवानी की तरफ जा रहा था, मैं अपनी कामलियत की तरफ जा रहा था, तू बलूगत की तरफ जा रहा था। हुसैन तेरा मेरा साथ बड़ा पुराना है। कुरान बोला हुसैन तेरा मेरा साथ बड़ा पुराना है, हुसैन मुझे तन्हा न छोड़ना। हुसैन बोले होंगे, ए कुरान मेरी रगों में मौला अली का खून है। मैं एक यूं कहता हूँ पंजाबी में, असी वफा वाले हाँ खता वाले नहीं। मैं वफा वाला हूँ, वफा वालों का खून है मेरी रगों में। कुरान तू घबरा नहीं, हाँ तू देखेगा कुरान जब करबला के अंदर मेरे सामने परेशानियों के अंबार होंगे, मेरे सामने नन्ही सकीना की प्यास होगी, मेरे सामने जब अली असगर की जवानी कुर्बान होगी, मेरे सामने जब अली अकबर कुर्बान होगा, कासिम की जवानी कुर्बान होगी, 6 माह का नन्हा अली असगर मेरे सामने गले में तीर खा चुका होगा। ए कुरान तू देखना जब मेरे सामने गुलशने नबूवत के लाशें पड़े होंगे, मैं नेज़े पर चढ़ के कुरान सुनाकर कहूंगा मैं वफा वाला हूँ। कुरान बोला, ए हुसैन मेरा तुझसे वादा रहा, तू करबला में मुझे मिटने न देना, मैं तुझे कयामत तक मरने नहीं दूंगा। तवज्जो है सही। कुरान कहता है जिक्र वालों से पूछो, हुसैन बता रहे हैं जिक्र वाले ऐसे होते हैं। हुसैन करबला में कुरान सुना रहे। और मेरी जानिब तवज्जो कीजिएगा, ये एक रिश्ता है अहले बैत का कुरान के साथ, ये एक रिश्ता है। उस रिश्ते की वफा का तकाजा था कि हुसैन नेज़े पर कुरान सुनाए। अगर आपकी मोहब्बत माशाल्लाह है, अगर कहें तो एक तीसरी वजह बताऊं कि हुसैन करबला में क्यों सुनाया कुरान कहता था शहीद जिंदा है, कुरान कहता था, कह रहा है, कहता रहेगा। अब जब ये आयत आका ताजदार कायनात के सीने मुबारक पर नाज़िल हुई, सहाबा ने भी सुना अल्लाह का पैगाम आ गया है, शहीद जिंदा होता है। मुनाफिकीन ने भी सुना कुरान कहता है शहीद जिंदा होता है। इसलिए हज़रात गिरामी कहता है आज की ये खूबसूरत महफिल पाक, ईसाइयों ने भी सुना कुरान कहता है शुहदाए करबला, यहूदियों ने भी सुना कुरान कहता है शहीद जिंदा होता है। अब कुरान मुंतज़िर था और शहीदों से कहता था, ए शहीदों मैं कब तक तुम्हारी गवाही देता रहूंगा। कुरान कहता था, ओ शहीदों मैं जमाने को कब तक बताऊंगा शहीद जिंदा होता है। कोई शहीद बोल कर बताए कि कैसे जिंदा होता है। हुसैन नेज़े की नोक पर बोल उठा
मजलिस में बैठे हैं। हज़रात गिरामी कदर, वो इमाम आली मकाम, आज हम इस महफिल में कुरान पढ़ेंगे। हम मुसल्ला इमामत पे खड़े होकर कुरान पढ़ते हैं, नमाज तरावी में कुरान की तिलावत करते हैं, महफिल और मजालिस में कुरान की तिलावत की जाती है। लेकिन याद रखिए, एक वो भी कारी कुरान था, एक वो भी मुहाफिज से कुरान थे जिन्होंने अपने बेटे को जमा करवा दिया, अपने भांजों को जमा करवाया, अपना जिस्म मुबारक से सर मुबारक जुदा हो गया, नेज़े की नोक पे चढ़ के। लोगों, अगर कुरान पढ़ा है तो हुसैन इब्न अली ने कुरान पढ़ा। आज क्या मोहब्बत है, कुरान क्यों सुनाया? अगर कहें तो चौथी वजह, दो से ज्यादा के मूड में नहीं था, मगर आपकी सुभान अल्लाह और मेरे बड़े भाई की मुस्कुराहट मुझे मजबूर कर रही है। ये थोड़ा सा साथ चंदा कम दे रहा है, मगर मैं दिल खोल रहा हूँ। चौथी कुरान क्यों सुनाया? हदीस सुनिए उलमा से, हुसैन मिन्नी, तवज्जो, पूरी हदीस है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी समझ लो। अगर तो मैं आपके अकीदे के ऊपर पहरा दूं और उसकी हिफाजत करूं, तो फिर नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, तुम्हारा हक है कि हाथ उठाकर तुम मेरे साथ अपने अकीदे का इजहार करो कि हम भी आपके साथ हैं। तवज्जो करना, पहले बात सुन लो। हजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। उलमा तफसीर करते रहे, तशरीह करते रहे, किताब होते रहे, बातें पढ़ी हो, बहुत तफसीरात हो चुकी। एक मेरे भाई जनाब फराज भाई को खूबसूरत जो है वो बात की। इसका एक मतलब ये है कि आका ने फरमाया कि करबला से पहले पहले, करबला से पहले पहले हुसैन मुझसे है, और करबला से लेके क़यामत तक मैं हुसैन से हूँ। क्योंकि मैं तो तालिब इल्म हूँ, उलमा के कदमों के नीचे लगने वाली मट्टी के जर्रों में से किसी एक जर्रे के बराबर नहीं। मैं तो चूँकि तालिब इल्म हूँ, तालिबाना हैसियत से ये हुसैन हुसैन मुझसे है, तो क्या मतलब है? देखिए, एक अगर मैं बहुत बड़ा यहाँ पर गोल दायरा बना दूँ, तो उसके छोटा सा एक अंदर गोल दायरा बना दूँ, और मैं इधर से गोल दायरा खुल है, और आपसे पूछूं कि तमाम मेरे चेहरे या क्या हुसैन सच्चे बड़ा कुल है तो छोटा उसका भी बड़ा कुल है तो छोटा उसका, बड़ा कुल है तो छोटा जुज़ है। हुसैन मिन्नी का मतलब है, आका फरमा रहे हैं मैं कुल हूँ, हुसैन मेरा जुज़ है। खामोश चेहरे नहीं, बोलते चेहरे चाहिए। हुसैन मेरा जुज़ है, हुसैन मेरा जुज़ है, हुसैन मेरा जुज़ है। मैंने कहा हुसैन आप लोग नेज़ा पर कुरान क्यों सुना रहे हैं? इमाम अली मकाम देने लोग, मैं जानता हूँ कि एक ज़माना आएगा लोग कहेंगे नबी जिंदा नहीं, माज़अल्लाह नबी मर के जमीन में मट्टी हो गया, नबी अब हयात नहीं, नबी जिंदा नहीं। इमाम हुसैन बोले मैं करबला में नेज़े की नोक पर कुरान सुना के तुम्हें बता रहा हूँ, और तवज्जो अगर समझ आए तो हाथ उठाना। हुसैन करबला में कुरान सुना के बोले मैं मुस्तफा का जुज़ हूँ और जिंदा हूँ, मैं जुज़ हूँ और जिंदा हूँ, मैं जुज़ हूँ और जिंदा हूँ। तो लोगों, जब मैं मोहम्मद का जुज़ हो के जिंदा हूँ, तो नाना मेरा कुल हो गया। हुसैन बोले मैं उम्मत को बताना चाहता हूँ, जब मौत जुज़ का कुछ बिगाड़ न सकी तो भूल गया। आपके अगर राज की बात बताऊं,
डायरी मैं कोई भी खिलाफ इसके बगैर नहीं करता। वजह ये है कि मैं जितनी भी नई रिसर्च लेता हूँ तो इसको खोल कर अभी किताब शुरू होने के बाद तो मैं आपकी जमीन पर भी कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कितने वफादार लोग हैं। 4 यारों के